Good morning, dear students. How are you all? Yes, beta. Welcome back again to discuss about chapter number 3, the consumer's equilibrium and utility analysis. Yes, almost we have completed this chapter, dear students. So today is the last day for this chapter. Then after tomorrow, we will start chapter number 4. So first of all, we will recap about the chapter, that what we have completed in this chapter. So let's proceed. In this chapter we have completed very important thing, that what is utility first of all. So dear students, utility means want satisfying power of a commodity, and utility can be measured in two types: cardinal and ordinal. Cardinal means that utility can be measured in terms of numbers 1 2 3 and so on, and ordinal means when utility measures in terms of rank. Okay, like comparison, good, better, best, etc. Okay, then after we have studied that what is total utility. So total utility means sum total of utility derived from the consumption of all the units of a commodity. It means किसी भी commodity की all units को consume करने के बाद हमें जो भी satisfaction मिलेगी उस total satisfaction को हम total utility कहेंगे. Then we have, along with the total utility, completed that marginal utility. So marginal utility means additional utility derived from the consumption of additional units of a commodity. एक commodity की extra unit consume करने से जो extra utility हमें मिलेगी, that is marginal utility. Then after we have completed tabular presentation, diagrammatic presentation and their relationship between TU and MU means when TU increases at decreasing rate, MU is positive. Okay, when TU is maximum, MU is 0. When TU start decline, MU is negative, and TU equals to summation of MU. There are the four main relationship between TU and MU. And then after, dear student, we have started law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility means that it states that more and more units of a commodity are consumed. सो MU फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट्स मस्ट डिक्लाइन. इट मीन्स जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो हर यूनिट से मिलने वाला MU जो होगा वो डिक्रीज़ होगा. ओके, तो इसीलिए जो MU की लाइन होती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि MU कभी भी इंक्रीज नहीं होता है. ओके, सो इसकी एजम्पन्स हमने पढ़ी थी कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स शुड बी कंज्यूम, कंजम्पशन शुड बी कॉन्टीन्यूस एंड यूनिट्स शुड बी होमोजीनियस. ओके, so then we have started the consumer equilibrium. Why we are studying the utility analysis and all the things? Because of we want to calculate consumer's equilibrium. So हमने क्या पढ़ा? Consumer equilibrium means it is a situation when consumer maximize his satisfaction after spending his income over commodity. जो सामान वो खरीद रहा है उस पर जो वो इनकम स्पेंड कर रहा है, तो जितनी वो इनकम स्पेंड कर रहा है उसके इक्वल उसको सेटिस्फेक्शन या उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जब मिलेगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा. और इन दैट केस बेटा वी हैव स्टडी वन कॉमोडिटी. when consumer one commodity case means when consumer consuming only one commodity with given income, and two commodity means when consumer consuming two commodities with given income. Okay, so dear student, one commodity case we have completed in the diagrammatic form, that Px is constant. Look at here once. Px is constant, Mu always downward, where Px and Mux, it means this is the point where both are meet, जहाँ दोनों मिल रहे हैं. दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और से ऊपर जितना भी एरिया होगा, दिस इज सरप्लस ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो रही है, इनकम खर्च कम कर रहा है, और इस इक्विलिब्रियम से नीचे कंज्यूमर नहीं जाएगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन वन कॉमोडिटी केस. देन आफ्टर, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कॉमोडिटी केस मीन्स Mux equals to Px. Margin utility should be equals to price. Then after we have started two commodity case. Two commodity case means that consumer consuming two commodities with given income. सेम इनकम है, उसमें अब वो एक की जगह कितनी यूनिट्स कितनी कॉमोडिटी कंज्यूम करे? टू कॉमोडिटी. सो यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी डियर स्टूडेंट? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी Mux अपॉन Px शुड बी इक्वल्स टू Muy अपॉन Py. ओके, दोनों कॉमोडिटीज़ की सेटिस्फेक्शन इक्वल होनी चाहिए. डायग्रामेटिकली यू कैन शो दैट हियर ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी आर शोइंग यूनिट्स ऑफ x, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी आर showing units of y. On the left hand side we are showing
on the y-axis marginal utility of x, and on the right hand side y-axis we are showing marginal utility of y, and price is constant of both commodities. So this is the line, constant line, mu x डाउनवर्ड mu y डाउनवर्ड, वेयर बोथ द लाइन मीट, जहाँ दोनों लाइनें मीट हो रही हैं, बोथ द लाइन्स मीट, दिस इज द कंज्यूम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. और इसमें पता चल रहा है कंज्यूमर कंज्यूमिंग 8 यूनिट्स ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड 12 यूनिट्स ऑफ y commodity. This is the state of consumer's equilibrium. Yesterday we have completed conditions, that what are the conditions of consumer equilibrium. So yesterday we have completed that यूटिलिटी शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर से. हमें यूटिलिटी को 1 2 3 की फॉर्म में ही लेना है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हमें कांस्टेंट रखना है. ओके, इवन प्राइस को भी हमें कांस्टेंट रखना है. एंड दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड होना चाहिए, यानी कि लॉ भी अप्लाई होना कंपलसरी है. ओके, उसके बाद कंज्यूमर शुड बी रैशनल, एक साउंड माइंडेड पर्सन होना चाहिए. उसका मेन एम होना चाहिए टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कॉमोडिटी. ओके, सो दीज आर द कंडीशंस. एंड व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन? सो देयर इज ओनली सिंपल लिमिटेशन that cardinal utility means expressed in terms of numbers. Okay, but in real life we can't measure the utility for every commodity in numbers. सबकी सब commodities को की utilities को हम कभी भी measure नहीं कर सकते numbers में. Okay, so ये इसका एक demerit है, limitation है. Okay, one question for you dear students, can you answer me what is the parameter to measure the utility? Utility को measure करने का parameter क्या है? Remember? Okay, utility always be measure in terms of utils is the parameter to measure the utility. So what is left for this chapter? It's only a single question. What happens when? So here is the question, dear student. What happens when MUX upon PX greater than MUY upon PY? देखो इक्विलिब्रियम में दोनों क्या है, इक्वल होनी चाहिए, बोथ विल बी इक्वल. बट अगर इक्वल नहीं है, सपोज इक्वल नहीं है, तो या तो ये हो सकता है कि MUX ग्रेटर देन MUY, या ये होगा MUX अपॉन PX लेस देन MUY अपॉन PY. सो करना क्या है इस केस में? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गिवन स्टेटमेंट. इस गिवन स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं. MUX upon PX greater than MUY upon PY. It means that X commodity giving more satisfaction than Y commodity. ये सीधे सीधे ये बता रही है कि हमें X से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है Y के कंपैरिजन में. अब एक साउंड माइंडेड पर्सन तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेगा, तो वो कौन सी कॉमोडिटी कंज्यूम करेगा? सो डियर स्टूडेंट, एज अ रैशनल कंज्यूमर ही विल कंज्यूम ओनली X कॉमोडिटी. वो किसको कंज्यूम करेगा? X को. अब तक हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ी है. 3 आफ्टर थर्ड थिंग द क्वेश्चन विल बी एंड. ओके, पहली चीज़ क्या? द अबव स्टेटमेंट शोइंग दैट MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY. इट मीन्स दैट X कॉमोडिटी गिविंग मोर सेटिस्फेक्शन देन Y कॉमोडिटी. ओके, second condition, second thing, that as a rational consumer will consume only X commodity. वो क्या कंज्यूम करेगा? X ज़्यादा कंज्यूम करेगा और Y को कम कंज्यूम करेगा. सो अब क्या होगा बेटा? जिस कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा उसकी यूटिलिटी क्या होगी? फॉल होगी. आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ता है उसकी यूटिलिटी क्या होती है? फॉल हो जाती है. और जिसका कंजम्पशन कम होता है उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में बोले, एवरेज बेसिस पर जो वेजिटेबल्स आप खाते हैं, घर में डेली खाना खाते हैं, तो हमें वो बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग नहीं लगता है. बट कभी हम रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें वो खाना बहुत टेस्टी लगता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो रूटीन में नहीं होता. और जो लोग बाहर हॉस्टल में रहते हैं, टॉक अबाउट देम, उनको हॉस्टल का खाना इतना पसंद नहीं आता, और जब वो घर आते हैं तो उन्हें घर का खाना बहुत अच्छा लगता है. तो दिस इज़ द रियल एग्जांपल बेटा, कि बहुत एक ऐसी कॉमोडिटी जिसे हम बार बार कंज्यूम करते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत कम हो जाती है, और सेटिस्फेक्शन का लेवल कम हो जाता है. और उसी चीज़ को अगर हम कई दिनों में या कुछ टाइम इंटरवल पे उसे देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसकी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बढ़ जाती है. ओके, सो डियर स्टूडेंट, 3 चीज़ें हमें याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जो भी सिचुएशन गिवन होगी हमें उसे ध्यान से देखना है कि क्या सिचुएशन गिवन है. अब सिचुएशन यहाँ है कि विच पार्ट इज़ ग्रेटर, MUX इज़ ग्रेटर देन MUY. तो इट मीन्स X कॉमोडिटी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, और एज ए रैशनल कंज्यूमर X कॉमोडिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, Y का कम होगा. अब जब X का कंजम्पशन बढ़ेगा तो MUX विल फॉल. एज कंजम्पशन ऑफ X इज राइज, MUX विल फॉल. सिर्फ इस चीज़ को याद रखें. और व्हेन द कंजम्पशन ऑफ Y कॉमोडिटी डिक्रीज, MUY विल राइज. ये अपोजिट होता है, जिसका कंजम्पशन बढ़ता है उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, और जिसका कंजम्पशन कम होता है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. और आफ्टर दिस पॉइंट अब Y
यूटिलिटी इंक्रीज होगी, एक्स यूटिलिटी डिक्रीज होगी, तो आफ्टर सम पॉइंट बोथ विल बी इक्वल or consumer will be strike at a point of equilibrium. So dear student, you have to complete two things today. That first case is what happened when mux upon px greater than muy upon py, and second question is what happens when mux upon px less than muy upon py. Okay dear student, try to attempt. If you are facing any problem, then call me or send message. I will help you out. Okay, stay blessed.